Hello, dear students. In previous two lectures, we have studied about scalar triple product and vector triple product. In last lecture, we have taken some examples related to scalar triple product. We are continuing that lectures or that questions. In last lecture, I have given one homework to you, that question number 8. If u vector, v r vector and w vector are given to us, and we are to find u vector plus w vector u dot u cross r cross w. To find this scalar triple product, this is nothing but a scalar triple product, because u plus w is one vector, u cross r is another vector, and r cross w is third vector, and it is nothing but the cross product of two vectors and the dot product of these two vectors, means it is the scalar triple product of these three vectors. And to find that, we are going to find these three vectors separately. For that, first of all, from the given u, r and w vectors, we have found u vector plus w vector. U vector is given I minus 2j plus k plus j minus k. This is the w vector. Addition of these I vector as it is, minus 2j plus j is minus j, and k minus k gets cancelled. Means u vector plus w vector is nothing but I vector minus j vector. Call it as first. We can read it as first. Now, u vector cross r vector, taking cross product of these two vectors, it is I, j, k. Components of I vector, u vector are 1 minus 2, 1, and components of r vector are 3, 0, 1. The cross product is taken as I vector into minus 2 minus 0 is minus 2, minus j vector into 1 minus 3, that is minus 2, and plus k vector into 0 plus 6, that is 6. Means u vector cross r vector is minus 2i cap plus 2j cap plus 6k cap. After that, to find r vector cross w vector, I vector, j vector, k vector in determinant. Now components of r vector are 3, 0, 1. Components of w vector are 0, 1, minus 1. Solving this determinant, we have I vector into 0 minus 1, that is minus 1, minus j into minus 3 minus 0 is minus 3, and k vector into 3 minus 0 is 3. Hence, r vector cross w vector is minus I cap plus 3j cap plus 3k cap. Now, after finding all these three vectors, we are going to find the scalar triple product of these three vectors. That is nothing but given by the determinant 1 minus 1 0. Components of this u plus w. Components of u cross r, we'll call it as second and third. This is second and this is third. Observing first, second and third, we have here 1 minus 1 0. 2 minus 2 2 6 and minus 1 3 3. Solve this determinant. 1 into 6 minus 18 is minus 12, plus 1 into plus 1 into bracket minus 6 plus 6, that is 0, and 0 into anything is 0. There is no need to take that. 1 into minus 12 is minus 12, means minus 12 is your answer. Hence the triple product is minus 2. Got it? Now after that, question number 9 is find the volume of tetrahedron whose vertices are A, B, C, D. 4 points are given which are the vertices of tetrahedron, and we know that if A vector, B vector, C vector are the coterminous edges of tetrahedron, then 1 by 6 into box ABC is its volume. Means here to find the volume of tetrahedron, we are going to find the coterminous edges, means take any vertex and from that the three vectors joining other three vertices. Means here we have to find AB vector, AC vector and AD vector. We can take vertex as any point. We can find BA, BC and BD also. We can find CA, CB and CD also. We can find DA, DB and DC also. Because we want three coterminous edges. मीन्स फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू थ्री साइड्स. ठीक है, तो यहां पे हम पहले कंसीडर करेंगे लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर
B position vectors of points A, B, C and D respectively. Therefore, we can say that A vector is equal to coordinates of point A are minus 1, 2, 3. Therefore, it is minus I cap plus 2j cap plus 3k cap. B vector is 3I cap minus 2j cap plus k cap. C vector is 2I cap plus j cap plus 3k cap. And D vector is minus I cap minus 2j cap plus 4k cap. These are nothing but four vectors, position vectors of these 4 points. Now, therefore, AB vector is equal to B vector minus A vector. You can find B vector minus A vector. 3I minus I means plus I, that is 4I cap. Minus 2j minus 4j cap. And k minus 3k is minus 2k cap. This is B vector minus A vector, that is AB vector. AC vector we can find, AC vector is equal to C vector minus A vector. 2I cap plus I cap is 3I cap. J cap minus 2j cap is minus j cap. 3k cap minus 3k cap is 0k cap. And AD vector is equal to D vector minus A vector. What is D vector? This one. And A vector minus I minus j means minus I plus I get cancelled. Minus 2j minus, it is minus 4j cap. 4k minus 3k is plus k cap. Once again, D vector minus A vector. AD vector means D vector minus A vector. Minus I minus plus I get cancelled. Minus 2j is minus 4j. 4k minus 3k is k. Now these are AB vector, AC vector, AD vector. Therefore, volume of tetrahedron A dash BCD is given by V is equal to 1 by 6 box AB vector, AC vector, AD vector. That is nothing but equal to 1 by 6 into determinant. Components of AB vector. AB vector के component 4 minus 4 minus 2, 4 minus 4 minus 2. AC वेक्टर के कंपोनेंट्स है 3 minus 1 0 और AD वेक्टर के कंपोनेंट्स है 0 minus 4 1. Now it is nothing but equal to 1 by 6 into bracket. Solve this determinant. 4 into bracket. Minus 1 minus 0 is minus 1. Plus 4 into bracket. 3 minus 0 is 3. And minus 2 into bracket, minus 12 minus 0 is minus 12. Now simplify it. That is nothing but equal to 1 by 6 into bracket, minus 4 plus 12 plus 24. It is nothing but 36 minus 32 upon 6 means it is 16 by 3 cubic units. Your answer is 16 by 3 cubic units. Addition is 24 plus 12 is 36. 36 minus 4 is 32. 32 upon 6 is 16 by 3. This is nothing but volume of this given tetrahedron. Please write down the questions and solve it carefully. Now look at for question number 10. A vector, B vector and C vector are given to us and we have to verify that A vector cross B vector cross C vector is equal to A dot C into B vector minus A dot B into C vector.
अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही है डायरेक्टली, लेकिन उसको हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है यानी एलएचएस को और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करके वो सेम आते हैं ऐसा प्रूव करना है। इसलिए हमें ए जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये फाइंड करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है। हम पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उसको ए से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसका आने वाला रिजल्ट, और ये डॉट प्रोडक्ट लेके उसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, ये डॉट प्रोडक्ट लेके उसको सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, उनका सब्ट्रैक्शन करके, यानी एलएचएस और आरएचएस हमें सेपरेटली सॉल्व करनी है और दोनों सेम आता है ये प्रूव करना है। सिंपल सी बात है। तो पहले हम बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे। यहां पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ये आई कैप जे कैप के कैप। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स है 3 2 0 और सी वेक्टर के कंपोनेंट्स है 2 1 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। आई कैप इंटू 6 माइनस 0 इज I cap into 6 minus 0 is 6 minus j cap into bracket 9 minus 0 is 9 and plus k cap into 3 minus 4 is minus 1. Therefore, we can say that B vector cross C vector is equal to 6 I cap minus 9 j cap minus k cap. ये B cross C आया। अब LHS फाइंड आउट करेंगे। LHS is equal to LHS is A vector cross B vector cross C vector, ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट। A वेक्टर के कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे, ये I J K, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई A वेक्टर के कंपोनेंट्स है 1 2 3, तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3। और B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर जो है B क्रॉस C, इसके जो कंपोनेंट्स है 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 माइनस 1 यहां पे लिखेंगे। ठीक है, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो आई कैप इंटू ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 27 इज 25 माइनस जे कैप इंटू ब्रैकेट माइनस 1 माइनस 18 इज माइनस 19 और प्लस के कैप इंटू ब्रैकेट minus 9 minus 12 is minus 21, minus 9 minus 12 is minus 21 means आपकी जो LHS है, LHS is 25 I cap plus 19 J cap minus 21 K cap। ये हो गया आपका LHS। अब RHS फाइंड आउट करते हैं। RHS में क्या लिखा है? RHS इज नथिंग बट इक्वल टू A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर, दैट इज इक्वल टू, पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे। A वेक्टर क्या है देखिए, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है C से, यानी ये 2I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप इंटू B वेक्टर। B वेक्टर को मैं फिलहाल एज इट इज रखता हूं, माइनस पहले ब्रैकेट में A वेक्टर यानी I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप डॉट B वेक्टर यानी 3I कैप प्लस 2J कैप इंटू C वेक्टर। ठीक है, C वेक्टर को भी एज इट इज रखता हूं, पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट लेते समय इसको करेंगे हम 2 प्लस 2 प्लस 9 इंटू B वेक्टर माइनस ये 3 प्लस 4 इंटू C वेक्टर। अब ये आएगा 13 इंटू B वेक्टर क्या है देखिए, B वेक्टर इज 3I कैप प्लस 2J कैप
-7 इंटू सी वेक्टर क्या है, देखिए सी वेक्टर इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट को 13 से, 13 इंटू 3 39 i कैप प्लस 26 जे कैप माइनस 14 i कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 21 k कैप। तो RHS इज इक्वल टू आ गया, RHS इज इक्वल टू 39 माइनस 14 इज 25 i कैप, 26 minus 7 is plus 19 j cap minus 21 k cap। ये इसको कहेंगे हम सेकंड, और जो LHS आई हमारी फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड you can observe the results in first and second. It is 25i plus 19j minus 21k, 25i plus 19j minus 21k. Therefore we can say that LHS is equal to RHS, hence proved। जब भी आपको hence verified we can say, verified, जब भी आपको वेरीफाई बोला है तो इसी तरह से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वहां पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ही वेरीफाई करना है, इसलिए वो रिजल्ट हमें ट्रिपल प्रोडक्ट लेते समय नहीं यूज करना। जब भी ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है तो 2 क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, आपको ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर गिवन देन फाइंड A cross B cross C and A vector cross B vector cross C vector। एज यूजुअली हम ये जो 2 रिजल्ट्स है इनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेके जाते हैं, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, ये हमने प्रॉपर्टी में लिखा था। लेकिन इसको ये रिजल्ट सेम है क्या, यानी इसको वेरीफाई करके, यानी इसको हमें अच्छे से अंडरस्टूड करना है। कभी भी हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। अब ये चेक करना है, चेक करने के लिए आपको ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन अच्छे से याद होना चाहिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये क्या होता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आउटर इंटू रिमोट और आउटर डॉट रिमोट, यानी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आउटर डॉट एडजेसेंट इंटू रिमोट। तो ये रिजल्ट हम इसको अब पहले फाइंड करेंगे, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में मैं लिखता हूं ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप डॉट सी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप डॉट बी वेक्टर यानी i कैप प्लस 2j कैप इंटू सी वेक्टर। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट लेते समय 1 इंटू 2 दैट इज 2 एंड माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 इंटू बी वेक्टर माइनस, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू सी वेक्टर, यानी अब 2 माइनस 2 0 इंटू बी वेक्टर, ये 0 ही हो गया, ये आएगा माइनस 3 इंटू माइनस यानी 3 सी वेक्टर, that is nothing but equal to, therefore we can say that A vector cross B vector cross C vector, it results that 3C vector means इसको 3 से multiply करो सिर्फ, it means it becomes 6 into I cap plus 3j cap minus 6k cap। इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, ये आपका पहला रिजल्ट हो गया A क्रॉस B क्रॉस C। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर।
सेकेंड वाला जो है इसको फर्स्ट लिखेंगे हम, ये है सेकेंड में फाइंड करना है हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसमें भी क्या है, आउटर डॉट रिमोट इंटू एडजेसेंट माइनस आउटर डॉट एडजेसेंट इंटू रिमोट। आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। आउटर इसे कहेंगे, इसे एडजेसेंट, और ये वेक्टर यहां पे रिमोट वेक्टर हो गया। तो आउटर डॉट रिमोट इंटू बी वेक्टर यानी एडजेसेंट माइनस आउटर डॉट एडजेसेंट इंटू रिमोट। तो सी वेक्टर हम पहले लिखेंगे। सी वेक्टर क्या है यहां पर, सी वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट ए वेक्टर यानी आएगा i कैप माइनस 2j कैप इंटू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट बी वेक्टर है यहां पर i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर इंटू ए वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? तो इज इक्वल टू लेंगे हम, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, i का कोएफिशिएंट 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2 इंटू बी वेक्टर माइनस ये आएगा 2 प्लस 2 इंटू ए वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 ए वेक्टर। अब ए वेक्टर हमें दिया है, यहां पे ए वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप, यानी ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस 4i कैप प्लस 8j कैप। इसको लिखेंगे हम सेकंड। समझ में आ रहा है आपको? These are the two results of vector triple product। अब क्वेश्चन है, are the results same? ये रिजल्ट सेम है क्या? Observing first and second, from first and second we can say that, from first and second we can say that a vector cross b vector cross c vector is not equal to a vector cross b vector cross c vector। That results are not same। और जस्टिफिकेशन हमने फर्स्ट और सेकंड को देख के ये ऑब्जर्व किया है। दैट इज योर जस्टिफिकेशन। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड द वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर, which is orthogonal to the vector 3i plus 2j plus 6k and is coplanar with the vectors 2i plus j plus k and I minus j plus k। यानी एक वेक्टर को परपेंडिकुलर और दूसरे दो वेक्टर को कोप्लेनर होने वाला वेक्टर। जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने एक फिगर निकाल के दिखाई थी आपको कि कोई भी तीन वेक्टर्स का जब ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो that vector is perpendicular to the a vector as well as it is coplanar with b vector and c vector। यानी अगर हम इनको नाम देते हैं, let a vector is equal to 3i cap plus 2j cap plus 6k cap, b vector is equal to 2i cap plus j cap plus k cap and c vector is equal to I cap minus j cap plus k cap। अगर हमने ये तीन वेक्टर्स को नाम दिए तो हम कहेंगे we know that a vector cross b vector cross c vector is a vector orthogonal
टू ए वेक्टर। वैसे ए वेक्टर को भी ऑर्थोगोनल है और बी क्रॉस सी को भी ऑर्थोगोनल है, क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट गिवन टू वेक्टर्स। यानी ये जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें से ए वेक्टर को तो हमेशा वो ऑर्थोगोनल रहेगा, एंड इट इज कोप्लेनर विथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। यानी रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा आपका, रिक्वायर्ड वेक्टर दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और इसको हम कैसा फाइंड आउट करते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। आउटर इंटू रिमोट, outer dot remote into adjacent minus outer dot adjacent into remote. Now a dot c, पहले हम लिखते हैं a vector that is 3i cap plus 2j cap plus 6k cap dot c vector है i cap minus j cap plus k cap into b vector minus this 3i cap plus 2j cap plus 6k cap dot 2i plus j plus k 2i plus j plus k into c vector। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, 3 minus 2 1 plus 6 7 b वेक्टर, यानी 7 इंटू बी वेक्टर। देखिए 3 minus 2 यानी 1 plus 6 यानी 7 b वेक्टर यानी क्या है 2i cap plus j cap plus k cap माइनस इनका डॉट प्रोडक्ट 6 plus 2 8 plus 6 14 into c vector, 8 plus 6 14 into c vector is I cap minus 2j cap, sorry, I cap minus j cap plus k cap, that is equal to, जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूं 14i minus 14i, तो ये 0i cap होगा, 7j plus 14j यानी 21j cap, और यहां पे आएगा 7k cap minus 14k cap is minus 7k cap। फिर से एक बार देखिए 14i minus 14i ये होगा 0, 14i minus 14i 0, 7j minus plus 14j 7j plus 14j is 21j, और ये 7 into 1 7 minus 14, 7 minus 14 means minus 7k vector, means this is nothing but your required vector। ठीक है, the vector which is orthogonal to given a vector and which is coplanar to these two vectors। समझ में आया यहां पर? Okay, now look at for question number 13। if a vector is I vector plus j vector plus k vector, a dot b is given 1 and a cross b is given j vector minus k vector, then prove that b vector is equal to I vector, यानी b vector हमें फाइंड करना है। देखिए अगर हम a vector क्रॉस b vector लेते हैं, a cross b, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है ये देखते हैं। इट इज नथिंग बट a vector dot b vector into a vector, a vector dot b vector into a vector minus a vector dot a vector, a vector dot a vector into b vector, outer dot remote into adjacent minus outer dot adjacent into remote। ठीक है, अब हमें b वेक्टर फाइंड करना है, इसमें हमें a क्रॉस b की भी वैल्यू दी है, a वेक्टर भी हमें पता है, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। हमें b वेक्टर निकालना है, यहाँ a डॉट b की वैल्यू दी है,
तो हम ये अगर वैल्यूज लिखते हैं यहां पर, तो हमें मिलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू तो हमें दी है 1, यानी ये आएगा ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर, ए डॉट ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। इसमें दो चीजें हमें पता नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर तो हमें गिवन है, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आता है, देखिए नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर दिया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये आ गया अंडर रूट ऑफ 3। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 3। इसको हम सेकंड लिखेंगे। अब फाइंड करते हैं हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर हमें पता है, ये आई जे के। ए वेक्टर हमें पता है 1 1 1 1 1 1, ए क्रॉस बी पता है 0 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप इंटू ब्रैकेट -2 माइनस जे कैप इंटू ब्रैकेट -1 प्लस के कैप इंटू 1, दैट इज इक्वल टू, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको हम थर्ड लिखेंगे। अब सेकंड और थर्ड की जो वैल्यूज है, सेकंड और थर्ड के वैल्यूज, इस सेकंड और थर्ड के वैल्यूज हम फर्स्ट में लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या होगा, ये इसकी वैल्यू आई है -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 प्लस के कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर हमें पता है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस के कैप और -3 बी वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 आया, तो 3 इंटू बी वेक्टर। देखिए ये जो वैल्यू है ए क्रॉस बी, ये हमने यहां पे रखी है, इस ए वेक्टर को हमने यहां पे रखा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर जो 3 निकाला है, 3 इज 3 इंटू बी वेक्टर। तो 3b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर 3b वेक्टर इज इक्वल टू इस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये सब उधर जाएगा, प्लस 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो ये जे और के कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 3b वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 3 आई कैप, और देयरफॉर b वेक्टर इज इक्वल टू आएगा आई कैप। हिंस प्रूव्ड। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे ये सेकंड 13 नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है, जिसमें हमें प्रूव करने को बताया है b वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। समझ में आया सबको? इसमें आप उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे a क्रॉस b क्रॉस ए से उसको क्रॉस करना है सिर्फ, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज बोथ क्रॉस प्रोडक्ट एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि बी वेक्टर हमें फाइंड करना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो इसमें सीधे सीधे LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू, रिजल्ट यही यूज करना है हमें जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है। पहले इसमें आउटर डॉट रिमूव, यानी यहां पे आएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस आउटर डॉट एडजेसेंट इंटू रिमूव। समझ में आ रहा है? प्लस अब इसको
आउटर डॉट रिमोट इंटू एडजेसेंट, यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस आउटर डॉट एडजेसेंट इंटू रिमोट इंटू ए वेक्टर। फिर तीसरा रिजल्ट प्लस आउटर डॉट रिमोट इंटू एडजेसेंट माइनस, इसको लिखेंगे हम आउटर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वी नो दैट a vector dot b vector is always equal to b vector dot a vector, b vector dot c vector is always equal to c vector dot b vector, यानी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ये हमें पता है, और c vector dot a vector is nothing but equal to a vector dot c vector। तो इस वजह से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होने वाली है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल होने वाली है, एंड रिमेनिंग दीज टू टर्म्स, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ये वाली टर्म माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और रिमेनिंग टू टर्म्स प्लस में इसको लिखूंगा पहले बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो वेक्टर मीन्स RHS, यानी इसको ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ये कैंसिल हो जाएगा और इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो सभी कैंसिल हो जाएंगे और आपको LHS इज इक्वल टू RHS, यानी रिजल्ट प्रूव होगा A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पे रुकते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो अगले लेक्चर में अब तक का सब थ्योरी पार्ट अपना खत्म हुआ है, अब थ्योरी पार्ट कुछ भी बचा नहीं है इस चैप्टर में। अब इसके आगे के 3, 4, 5 लेक्चर में हम पूरी सिर्फ प्रैक्टिस लेने वाली है। सिर्फ अभी जितने भी एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज के और सॉल्व एग्जाम्पल के पूरे क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक के और एडिशनल कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिए हुए हैं। अब हम आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जाने वाले हैं, तो आगे के क्वेश्चंस और मिसलेनियस एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है सभी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो इसके आगे के लेक्चर्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर का थ्योरी पार्ट और कंसेप्चुअली जितना पार्ट है पूरा आज के लेक्चर तक खत्म हो गया। अब इस पे एप्लीकेशंस और प्रैक्टिस ये चीज बाकी है, तो अगले 5-6 लेक्चर जो भी है आप थोड़ा भी उसको मिस मत कीजिए। थैंक यू।